Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 15, and the title of lecture number 15 is New Product Development and Product Life Cycle Strategies. So today we will go into the detail of how we can develop new product and what are the different steps involved in developing new product. Similarly, in one of the last lecture, I discussed slightly about the product life cycle, and today we will go into the detail and I will explain what is product life cycle, especially from the point of view of new product development. So all these things we will cover today, but again just I am sharing the today's lecture outline. And first we will cover new product development strategy, then we will cover new product development process. Again there is a process is there how you can make new product. Then we discuss managing new product development. Suppose if you are managing the new product development process, how you can manage all these. Next is product life cycle strategies. We know every product went through the product life cycle stages. What are these stages and how you can make strategies for each stage. Then we will discuss additional product and services consideration. And these are the topics that we will cover today. So first we are starting from two ways to obtain new products. The one way is acquisition, and acquisition means refers to the buying of a whole company, a patent or a license to produce someone else's product. Now we are discussing about the new product development process, and before we start our main discussion, I am just sharing a few definitions with the objective you are able to understand when we discuss these terminologies. The first one is the acquisition, और acquisition की जो definitions है वो ये है कि आप क्या करते हैं, आप किसी भी कंपनी को जो established कंपनी है उसको आप ओन कर लेते हैं, या आप कोई पेटेंट किसी ने अपना कोई फार्मूला उसको यानी कि लीगलाइज करवाया हुआ है, आप उससे वो ले लेते हैं अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, या वो आपको एक लाइसेंस दे देता है कि जी ओके यू कैन यूज माय नेम एंड यू कैन प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट एंड यू विल पे द फी ऑफ दैट लाइसेंस. सो दिस इज वन ऑफ द वे हाउ यू कैन एंटर इनटू अ न्यू प्रोडक्ट. इसके अलावा एक और तरीकाकार है, that is new product development. Refers to original products, product improvement, product modification and new brands developed from the firm's own research and development. Now you are not taking anything from out of your organization. What actually you are doing, either you are going to produce a new product or you are using your company's research and development efforts, or you are able to get some feedback from your consumer or your retailers or distributor, or within your organizations the production department or research and development department, they are able to develop something and you want to bring it into the market. This is the new product development. So we have two ways to obtain new products. One is acquisition. Acquisition में यह है कि ठीक है किसी की प्रोडक्ट और आप उसको लीगली जो है उसके राइट्स ले लेते हैं, और वो क्या है कि आप या तो उसकी वो कंपनी खरीद लें, उससे पेटेंट ले लें, उससे लाइसेंस ले लें, उससे राइट्स ले लें, या फिर दूसरा ये है कि आप अपने ही यानी कि रिसोर्सेज से प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं.
मेजर स्टेजेस इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम आइडिया जनरेशन। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास आइडिया हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस, आइडिया जनरेशन। सेकंड, आइडिया स्क्रीनिंग। फिर वो जो आइडियाज़ आपके पास आते हैं, जो आपने आइडियाज़ प्रोड्यूस किए, जनरेट किए, आप ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा आइडिया उसको डिफरेंट पैरामीटर्स पे उसको एवेल्युएट करते हैं, जिसको हम कहते हैं आइडिया स्क्रीनिंग। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। देखिए, आइडिया तो इट्स जस्ट समथिंग इन द एयर, उसकी कोई वो तो नहीं होती। आपने कहा कि हमें यूं करना चाहिए, अब ये जो यूं है ये कैसे होगा? उसके लिए फिर आप क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, आपको टेस्टिंग करेंगे, आप किसी से डिस्कस करेंगे। फिर इस स्टेज के बाद नेक्स्ट जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। फिर आपके पास जब वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसकी हमने को टेस्टिंग कर ली, फिर आप देखते हैं कि इज इट पॉसिबल टू मार्केट दिस कॉन्सेप्ट। क्योंकि बहुत चीजें होती हैं कि हैं ठीक है, लेकिन आप उसको मार्केट कैसे करें, आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बाद आप फिर उसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बिजनेस एनालिसिस में यह है कि आप उसके फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उसकी कॉस्टिंग है, उसकी क्या नाम है इन्वेस्टमेंट के मैटर्स हैं, उसकी प्रोडक्शंस हैं, उसके क्या नाम है ह्यूमन रिसोर्स आपको जो चाहिए, उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, आपको जो स्किल्स चाहिए, वो सारे जो से आप उनके डिफरेंट आप उनके प्लान्स बनाएंगे। फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद उसकी टेस्ट मार्केटिंग करेंगे। और जब ये सारी प्रोसेस से गुजर के वो चीज़ जो से उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो फिर आप उसको मार्केट में ले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कमर्शलाइजेशन। These are the major stages in new product development, and I'm not going into detail in this slide. I'm just sharing the different stages of new product development with you. But in the later stages, we will discuss each stage and I will share more information. So, idea generation, next idea screening, then we have the concept development and testing, then we have marketing strategy development, then we have business analysis. After that we have product development, test marketing, and finally commercialization. Okay, now we want to know what is idea generation. Idea generation is the systematic search for new product ideas. यानी कि इसमें आप क्या ना आइडिया क्रिएट करते हैं, आप सर्च करते हैं। और ये जो है अगेन सोर्सेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज आर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। आपको जो आइडिया जनरेशन जो है वो आपके इंटरनली भी हो सकती है, आपके अपने एम्प्लॉयज, आपका अपना स्टाफ, आपके अपने लोग, और एक्सटर्नली भी हो सकता है जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स वो भी आपको कोई आइडियाज दे सकते हैं। तो आइडिया जनरेशन क्या है कि जिसमें आप एक सिस्टमैटिक सर्च करते हैं फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, और ये जो है इसके यानी कि दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक आपके इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। जिस तरह इस पिक्चर में भी अगर आप देखें तो एक्चुअली डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू डेवलप सम आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, या आइडिया जनरेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये भी उनमें से एक टेक्निक को यूज कर रहे हैं। अब आइडिया जनरेशन में हमने बात की इंटरनल सोर्सेज की एंड एक्सटर्नल सोर्सेज की। फर्स्ट वी विल डिस्कस द इंटरनल सोर्सेज। Internal sources refers to the company's own formal research and development management and staff and entrepreneurial programs. So what is inside the organization? If you are taking advantage of that internal resources for the idea generation, this will become internal sources. Similarly, we have the external sources, and external sources refers to sources outside the company.
such as customers, competitors, distributors, suppliers, and outside design firms. So these are the organizations who can produce external sources for your organization. And it can be your customers, it can be your competitors, it can be your distributors or supplier, or sometimes there are certain design firms whose main job is to produce designs, and they sell their designs with the manufacturing companies, and they have an understanding, either they charge or they have a royalty or something like that. So idea generation, and there are two types. One is internal sources and the next is external sources. And then we have crowd sourcing, inviting broad communities of people. Crowdsourcing, as it's clear from the word crowd, means inviting broad communities of people, and these are customers, employees, independent scientists and researchers, and even the public at large into the new product innovation process. इन क्राउड सोर्सिंग आप क्या करते हैं कि इसमें आप बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, यानी आपके कस्टमर भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं उस फील्ड के, एंड इवन द पब्लिक एट लार्ज। और इन सारों को आप इनवाइट करते हैं, इंगेज करते हैं, उनकी यानी फीडबैक लेते हैं टूवर्ड्स आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन के बाद अब सेकंड ये है कि अब आपने आइडिया को स्क्रीनिंग करनी है उसकी। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ गए हैं, लेकिन ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो रॉ फॉर्म में है। हम यूं कर लेते हैं, हम ये बना लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें नॉट नेसेसरी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल प्रैक्टिकली। क्यों ना हम एक आइडिया, तो ये भी था आइडिया जनरेशन में क्या है, क्यों ना हम ऐसी गाड़ी बनाएं जो हवा से चलती हो, क्यों ना हम ऐसी कोई चीज़ बनाएं कि जिसको खाने के बाद इंसान जो है वो 3 दिन नॉन स्टॉप काम कर सके। क्यों ना हम ऐसी कोई चीज़ बना लें जिससे कि क्या नाम है आपकी कोई IQ लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए। या हम कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं डेवलप कर लेते, कोई ऐसी डिवाइस क्यों नहीं बना लेते कि इंस्टेड ऑफ वी हैव सो मैनी रिमोट कंट्रोल, वी हैव वन रिमोट कंट्रोल दैट कैन ऑपरेट ऑल दिस स्टफ। आपको टेलीविजन है, आपको DVD है, आपके ACs हैं, आपके कंप्यूटर हैं, उन सब के लिए हम इतने सारे जो हमने रिमोट कंट्रोल रखे हैं, व्हाई नॉट वी हैव वन सिंगल रिमोट कंट्रोल। तो आइडिया तो कुछ भी। अब ये है कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये है कि आप उसको स्क्रीन करना है कि उनमें से कौन से आइडिया है जिनको आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके। हर आइडिया को तो आप लेकर नहीं जा सकते। तो आइडेंटिफाइंग गुड आइडियाज एंड ड्रॉप पुअर आइडियाज। सिंगल जो स्क्रीनिंग की जो डेफिनेशन है वो ये कि जो अच्छे आइडियाज़ हैं उनको आगे ले जाएं, जो आपके इधर आप कमज़ोर आइडियाज़ हैं, जितने अच्छे आइडियाज़ हैं उनको ड्रॉप कर दें। उसके बाद क्या है, RWW स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क। एक और हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं RWW स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क। R is it real? R stand for is it real? W, the first W stand for can we win, and the second W stand for is it worth doing। आप ये सिंपल 3 क्वेश्चन अपने आप से करते हैं RWW। क्या आपका आइडिया जो है वो रियल है, कॉपी तो नहीं कर रहे किसी और का, कोई अपने यानी कि को फॉलो तो नहीं कर रहे, क्योंकि फिर उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर सेकंड ये है कि क्या नाम है, इज इट अ विनिंग आइडिया, अगर हम इस आइडियाज़ को आगे लेकर जाएंगे तो वी आर एबल टू जनरेट अ प्रोडक्ट दैट कैन ब्रिंग मोर रेवेन्यू फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद थर्ड जो है, इज इट वर्थ डूइंग, कि हम जितने एफर्ट्स करेंगे, जितने स्ट्रगल करेंगे तो ये वाकई यानी कि हमारे लिए इट्स वर्थ डूइंग, कि अगर हम इस पे काम करें।
या क्या हम इससे कम रिसोर्सेज, कम एनर्जीज, कम यानी कि इन्वेस्टमेंट के साथ हम इससे बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग में क्या है कि आपने अच्छे आइडियाज़ को आगे लेकर जाना होता है, जो वीक आइडियाज़ होते हैं, पुअर आइडियाज़ होते हैं, उनको आपने ड्रॉप कर देना होता है और उसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। लेकिन एक जो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये जो आइडिया जो है ये रियल है, ये हमें यानी कि कुछ हम इससे गेन कर सकेंगे। और थर्ड कि अगर हम अपने रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जीज, इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर हम यूज करते हैं, कैन वी आर एबल टू गेट समथिंग वर्थी वाइल, वी आर एबल टू गेट समथिंग दैट इज वैल्यूएबल। तो ये सारी चीजें जब आप अपने आप से पूछते हैं तो उसके बाद आप आइडिया स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद जो है एक और चीज दैट इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट आइडिया। आइडिया जनरेशन हुई, आइडिया स्क्रीनिंग हो गई, अब उसके बाद प्रोडक्ट आइडिया इज एन आइडिया फॉर ए पॉसिबल प्रोडक्ट दैट द कंपनी कैन सी इटसेल्फ ऑफरिंग टू द मार्केट। अब आप उसके पैरामीटर्स है, आपका जो आइडिया है वो प्रोडक्ट के किस फॉर्म में आएगा। कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि जी प्रोडक्ट फॉर्म में क्या आएगा। देखिए ना, किसी ने यानी जब भी है जैसे कंप्यूटर है, उसने पता नहीं क्या सोच के बनाया होगा, लेकिन अब हम जो कंप्यूटर, हम कंप्यूटर्स पे जो कंप्यूटर के काम है वो भी करते हैं, यानी कि एनालिसिस है, प्रोसेसिंग है, सब कुछ। बाज़ लोग उसको एज ए टाइपराइटर यूज़ करते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। बाज़ लोग उस पर वीडियोस देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। लेकिन अब जब उसने बनाया तो उसने जो प्रोडक्ट डेवलप की तो उसके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट था कि कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। तो प्रोडक्ट आइडिया इज एन आइडिया फॉर अ पॉसिबल प्रोडक्ट दैट द कंपनी कैन सी इटसेल्फ ऑफरिंग टू द मार्केट, कि वो क्या चीज मार्केट को ऑफर करने जा रहे हैं। Product concept is a detailed version of the idea stated in meaningful consumers terms. Product concept में जो है आप फिर वो सारी चीजें इनलिस्ट करते हैं that you are actually going to offer to your customer, कि जी इसमें ये चीजें होगी, ये जो प्रोडक्ट है ये और ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। पीपल कैन यूज दिस प्रोडक्ट इन दिस वे। और ये जो होता है आपका डिटेल वर्जन होता है ऑफ द आइडियाज के, वो जो आपका जो आइडिया होता है कि उसमें आपने क्या चीज जो है उसको हाईलाइट किया, उसका एक डिटेल वर्जन होता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज इज द वे कंज्यूमर्स परसीव एन एक्चुअल और पोटेंशियल प्रोडक्ट। What sort of the image you want to create in the eyes and mind of your customer. तो वो जो आपका दैट इज प्रोडक्ट इमेज, कि वो क्या समझेंगे कि क्या ये जो प्रोडक्ट जो है ये हमारे किस काम की है, हाउ इट विल बी बेनिफिशियल एंड हाउ वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट। फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है। फिर इसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने उस जो भी कॉन्सेप्ट जो है उसको डेवलप भी करना होता है और उसको टेस्ट भी करना होता है कि इज इट वर्केबल। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग रेफर्स टू टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद ग्रुप्स ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स। जब भी आप कोई नई चीज बनाते हैं उसके स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन, एफिशिएंसी को जो है आप चेक करते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशंस और इन रियल एनवायरनमेंट। तो ये जो है आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है। फिर उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट आ जाती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट रेफर्स टू द इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट, कि हाउ विल इंट्रोड्यूस इनटू दिस प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, व्हाट सॉर्ट ऑफ द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैसेज वी विल अटैच विद दिस प्रोडक्ट, कि हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या मैसेज अपने कंज्यूमर्स को देंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्टेटमेंट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द टारगेट मार्केट, कि हु विल बाय दिस प्रोडक्ट, आपको टारगेट मार्केट डिफाइन करनी है। वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या वैल्यू है जिसकी वजह से जो है पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है, या एज कंपेयर टू द सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ दैट कैटेगरी, व्हाट इज द प्लस पॉइंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट।
तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं इनका आपने इन्हीं की स्ट्रेटजी बनानी होती है और इनका आपने ख्याल रखना है। फिर उसके बाद सेल्स एंड प्रॉफिट गोल्स कि आप उसकी प्राइस क्या रखेंगे, किस प्राइस पे सेल करेंगे और उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है और कितने अरसे में आप ब्रेक इवन में पहुंचेंगे और कब आपकी जो प्रोडक्शन है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में फिर एक और स्टेप जो है दैट इज बिजनेस एनालिसिस। Involve a review of the sale, cost and profit projections to find out whether they satisfy the company's objective. बिजनेस एनालिसिस में फिर आप ये उसका सारा ओवरऑल एनालिसिस करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट क्या नाम है ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हम जिस प्राइस पे सेल कर रहे हैं उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है। फिर आप ये देखते हैं कि जी इस प्रॉफिट मार्जिन के साथ क्या नाम है हमारा ब्रेक इवन क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ मच मनी दे वांट टू जनरेट। देखिए ये भी तो होता है ना कि बाज़ औक़ात आपकी प्रोडक्ट आपने डेवलप तो कर दी है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इट्स वेरी हाई और आप जिस प्राइस पे बेच रहे हैं उसमें शायद आपने इतना मार्जिन नहीं ऐड किया हो और उसके बाद जब आप सारे एफर्ट्स करके बाद आप जब उसको एवेल्युएट करते हैं उसकी प्रॉफिट मार्जिन को, तो पता चलता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के यू विल मेक इतने मिलियन रुपीस इन द ईयर एंड इट्स नॉट मैचिंग विद देयर टारगेट और ऑब्जेक्टिव। तो फिर ये है कि आपका यू हैव टू रिवाइज योर बिजनेस एनालिसिस और यू हैव टू थिंक अबाउट कि व्हाई इट इज नॉट एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जब आप उसने बिजनेस एनालिसिस कर लिया तो उसके बाद आप प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। देखिए हर चीज़ जो सी बहुत सिस्टमेटिक है। पहले आपने आइडिया जनरेशन किया, फिर आइडिया स्क्रीनिंग किया, फिर उसके बाद आपने उसके कॉन्सेप्ट पे काम किया, फिर आपने उसकी प्रोडक्ट पे काम किया। अब ये है कि अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर जस्ट डूइंग डॉक्यूमेंटेशन। अब जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड टेस्टिंग ऑफ वन और मोर फिजिकल वर्जन बाय द R&D और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब आप इन रियलिटी फिजिकली वो चीज़ डेवलप करेंगे। इससे पहले आप सिर्फ वर्किंग कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, डिज़ाइनिंग कर रहे थे, लेकिन अब आप जो है आप ऑपरेशनल साइड पे जा रहे हैं और आप कोशिश करेंगे कि आप उसका फर्स्ट वो जैसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप, आप उसकी फर्स्ट इनिशियल वर्जन जो है वो डेवलप करेंगे। रिक्वायर्स एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और जब आपने अब ऑपरेशनल साइड पे जा रहे हैं यू नीड मोर मनी, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, ज़बानी कलामी प्लान तो बन जाते हैं, आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं, लेकिन जब आपने किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूट करना है तो नेचुरली आपको उसके लिए फंड्स चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड, शोज वेदर द प्रोडक्ट आइडिया कैन बी टर्न इनटू वर्केबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी चेक होगी, वो ये कि आपका जो आइडिया जो सा था क्या वो उसमें ये एबिलिटी है कि वो एक वर्केबल प्रोडक्ट बन सके। जब आप प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, अब आपने प्रोडक्ट बनानी है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो आइडिया है, प्रोडक्ट आइडिया, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ रियल प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग इज द स्टेज एट विच द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स are introduced into more realistic marketing setting। अब टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपकी वो जो प्रोडक्ट होती है आप उसको एक लिमिटेड स्केल में इन एक्चुअल मार्केट, उससे पहले देखिए आपने अपने इंटरनल चेक कर लिया, लैब में चेक कर लिया, कंट्रोल एनवायरनमेंट में चेक कर लिया, लेकिन अब टेस्ट मार्केटिंग में क्या है कि आप एक स्मॉल स्केल में आप एक मार्केट डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप उस मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग करेंगे अंडर नेचुरल कंडीशंस। ये जी अब इसका रिस्पांस क्या आता है। फिर प्रोवाइड द मार्केटर विद एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग द प्रोडक्ट एंड एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम बिफोर फुल इंट्रोडक्शन। टेस्ट मार्केटिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो फीडबैक आएगी, उसको आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी वो जो प्रॉपर आपकी जो सी मार्केटिंग कैंपेन है।
या आपकी जो फुल स्केल जब आप लॉन्च हो जाएंगे, जो भी आपको रिजल्ट्स आए हैं, फीडबैक आई है, वो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को मजीद इम्प्रूव करेंगे, उसके प्लानिंग को मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे. You will modify, you will improve your plans, and you prepare yourself for a full introduction of your product. इसी तरह की जैसे भी आपके साथ वाली पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट. अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में क्या है? व्हेन फर्म्स टेस्ट मार्केट, व्हेन फर्म्स मे नॉट टेस्ट मार्केट. अब देखें दो चीजें ना, अगर आप टेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका क्या है, और अगर आप नहीं कर रहे तो देन व्हाट विल हैपन. अगर आप टेस्ट मार्केट कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट विद लार्ज इन्वेस्टमेंट, अनसर्टेनिटी अबाउट प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्रोग्राम, ठीक है, आपने टेस्ट मार्केटिंग कब करनी है? जब आपकी न्यू प्रोडक्ट है और आपकी लार्ज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, या आपको कुछ सर्टेन कंसर्न है अबाउट योर प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, देन यू विल गो डेफिनेटली फॉर टेस्ट मार्केट. देखें, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, या आपको अपनी प्रोडक्ट में कुछ डाउट हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, या आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ आपको कोई इश्यूज हैं, तो इट्स बेटर कि यू विल गो फॉर द टेस्ट मार्केटिंग. व्हेन फर्म्स मे नॉट टेस्ट मार्केट, सिंपल लाइन एक्सटेंशन, एक आप प्रोडक्ट है उसमें हमने सिंपल लाइन एक्सटेंशन की है, आप पहले क्या नाम है 2 फ्लेवर्स में दे रहे थे, हमने तीसरा फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है. बस आप उसको अगर नहीं भी टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, आप लॉन्च कर देते हैं, 2 मार्केट में आपके ऑलरेडी फ्लेवर्स जा रहे हैं, अब तीसरा भी आपने बेचना शुरू कर दिया, ओके फाइन. सेकेंड आंसर, कॉपी ऑफ कंपीटिटर्स प्रोडक्ट्स. एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है एंड इट्स वेरी पॉपुलर, यू आर जस्ट मेकिंग अ कॉपी ऑफ दैट, ठीक है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो पॉपुलर है, पीपल आर बाइंग and you want to copy that product, ठीक है. अगर आप उस प्रोडक्ट को कॉपी करने जा रहे हैं एंड यू रियलाइज के इट्स ऑलरेडी पॉपुलर, क्यों कॉपी किसकी होती है? Actually you will make a copy of that product that is already well established or that is good enough. If the product is not good, it is not popular in the market, then you will not go for the copy of that product. अच्छा, इसके अलावा लो कॉस्ट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस. Another is the product is low cost as far as the management is concerned. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहते हैं यार कोई बात नहीं, आप लॉन्च कर दें, इसी कौन सा कॉस्ट इतनी ज्यादा है. जैसे कि आप टेस्ट मार्केट में जाते हैं, जब आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो आप टेस्ट मार्केट में जाते हैं बिकॉज यू कांट अफोर्ड द ब्लंडर्स, यू जस्ट वांट टू अवॉइड द ब्लंडर्स. लेकिन जहाँ पे आप सिंपल लाइन एक्सटेंशन कर रहे हैं, आप एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है उसी का ही एक कॉपी वर्जन लेकर आ रहे हैं, या आपकी जो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, फिर आप कहते हैं कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, विदाउट टेस्ट मार्केटिंग भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें. अब अगर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टेस्ट मार्केट्स, कि आपकी जो टेस्ट मार्केट्स जो हैं वो किस किस्म की होती हैं. एंड बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट मार्केट्स. वन इज स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट्स, सेकंड इज कंट्रोल टेस्ट मार्केट्स, एंड थर्ड इज सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट. नाउ वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस, what are the standard test markets, control test market and simulated test market. And first, the standard test marketing is where actually you are using all the parameters that you are already using, ठीक है. अगर आपकी कोई ऐसी है स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केटिंग के, वही आपके जी आपने एक मार्केट सेलेक्ट कर ली, उसमें एक सैंपल साइज आपका डिफाइन है, उसी को आप अगर यूज करने हैं, इट्स अ स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केटिंग. अगर उसके मुकाबले में अगर आप क्या नाम है कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग मीन्स
कि जहाँ पर आपने जो उसके जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल किया हुआ है. इट कैन बी लाइक इन अ लैब, इन समवेयर इन अ कंट्रोल्ड कंडीशंस. सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट जो सी है ये क्या होती है कि जहाँ पर आप एक प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपने उसके लिए जितनी भी एनवायरनमेंट है वो आपने खुद क्रिएट की हुई है. And the created environment is more or less the real environment, but actually it's not real. ठीक है, ये उसी ही तरह है जैसे कि रियल मार्केट एनवायरनमेंट होगी लेकिन ये रियल नहीं होती. अब ये कि यहाँ पर इनमें से जो सबसे जो है क्योंकि वो ये सिमुलेटेड है, हम उसके एडवांटेजेस ऑफ सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट से डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्या एडवांटेजेस हैं. देखें, अगर आप नेचुरल मार्केट में जाएंगे उसकी एक कॉस्ट है, एक एफर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट जो है कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है देन अदर टेस्ट मेथड्स. आपने खुद ही एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई है तो उसकी जो कॉस्ट जो है वो नेचुरली एक्चुअल मार्केट से उसकी कम होगी. फास्टर है, उसके आप फौरन चेक कर सकते हैं, क्विक रिजल्ट है, फीडबैक, एवरीथिंग इज वेरी क्विक. रिस्ट्रिक्ट एक्सेस बाय कंपाइलर्स, जाहिर बात है आपने इसको क्रिएट किया, उनमें कोई कंपाइलर्स का कोई रोल नहीं है. नेचुरल मार्केट में तो क्या है, वहाँ पे आपको कंपटीशन भी होगा, कंपाइलर्स भी हैं, तो इसमें आपको कोई कंपाइलर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अब डिसएडवांटेजेस क्या है, वही चीजें अगर आप देखें तो कुछ इसमें सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी बनते हैं, लाइक नॉट कंसीडर एज रिलायबल एंड एक्यूरेट ड्यू टू द कंट्रोल सेटिंग. इसमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है या जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो है ये रिलायबल नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं होते. इसके जो रिजल्ट हैं वो रिलायबल भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है. किस लिए नहीं है, क्योंकि ये आपकी सेल्फ क्रिएटेड है, इट्स आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट. अब देखें, नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो सी होती है आपके कंट्रोल में नहीं होती. कंट्रोल कंडीशंस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को आपने कंट्रोल किया हुआ होता है, इसलिए जो सिमुलेशंस हैं ये कंट्रोल जो है इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ठीक है आपको एक ट्रेंड तो बता देंगे, आपको एक इंडिकेशंस तो दे देंगे, लेकिन नॉट नेसेसरली द कंट्रोल एनवायरनमेंट रिजल्ट्स आर सेम एंड सिमिलर टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. और आप इस चीज को बखूबी समझ भी गए होंगे कि वो क्यों नहीं होते, क्योंकि जहां पर कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, कंट्रोल आपके सर्टेन चीजों पर होगा, जबकि आप अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में वहां पर बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होंगी. इस तरह क्या नाम है मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में जो है कमर्शलाइजेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. और इसमें हम क्या है, अगेन वी विल आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ. वन इज व्हेन टू लॉन्च. अगेन इट्स वेरी ट्रिकी एंड रिजल्ट्स समटाइम्स are not favorable just because of the wrong selection of the time. So it's very important when to launch, where to launch, plan, market, rollout. अब यहाँ पर यह है कि आपने तीन चीजें अपने आप से पूछनी है. पहली आपने ये पूछनी है कि जी हम कब लॉन्च पे जाएं. फिर हमने जो लॉन्चिंग अपनी जो है प्रोडक्ट लॉन्च जो है उसको हम कहाँ से करें. और फिर ये है कि तीसरा ये होता है कि जी आपने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि पहले हम सपोज इस मार्केट से लॉन्च करेंगे, उसके एक माह बाद हम दूसरी मार्केट में जाएंगे, उसके बाद तीसरी मार्केट में, और हम इसमें ये हमारा पैटर्न होगा और सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे अदर सिटीज ऑल्सो. और इतनी ड्यूरेशन के अंदर हमने उसके पूरे नेशनल लेवल पर लेट्स से कि जी टॉप 10 कंट्रीज सिटीज जो सी ऑफ द कंट्री उसमें हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना है. सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुड बी. अगर आप एक सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं देन कस्टमर सेंटर्ड होना चाहिए. देखिए मार्केटिंग में हम कहते ही क्या है, टू अंडरस्टैंड दी नीड्स एंड वांट्स ऑफ योर कस्टमर. Similarly, whatever be you are producing or you want to market, it should be customer centered.
आपकी जो न्यू प्रोडक्ट भी है, जब तक वो कस्टमर सेंटर नहीं होती, उसका फोकस जो है वो कस्टमर की तरफ नहीं होगा, तो it will not be able to gain the attention and it will not be able to gain the confidence of your customers. टीम बेस्ड, देखिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और स्पेशली उसको जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। आपको उसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट चाहिए होती है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्सपर्टीज है उसकी ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज़ नॉट ओनली द जॉब ऑफ द मार्केटिंग बट इट्स द जॉब ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, and every department should play its role in product introduction into market. Otherwise, अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं कर रही एज ए टीम, so maybe product will not be able to gain the acceptance from the market. Third, systematic, यानी कि आपके बहुत ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। पहले हम ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे और उसके बाद ये चीज़ करेंगे। We will start from here, we will move on to that and then we will finish here. This is a systematic approach that you will use while if you want to do a successful new product development. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में क्या है? कस्टमर सेंटर्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू वेज टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट मोर कस्टमर सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंसेस। इसमें आपने क्या होता है, कस्टमर सेंटर्ड में क्या है कि आप वही बात है कि कस्टमर को फोकस करते हैं। आप कस्टमर्स के यानी कि जो होती है उसकी जो नीड्स होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप ये देखते हैं कि कस्टमर व्हाट सॉर्ट ऑफ द प्रॉब्लम कस्टमर्स आर फेसिंग, व्हाट कस्टमर आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। वो सारी चीज़ें जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उनको एड्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। टीम बेस्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो भी हम डिस्कस भी करते हैं, कंपनी डिपार्टमेंट्स वर्क क्लोजली टुगेदर इन क्रॉस फंक्शनल टीम्स ओवरलैपिंग इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस टू सेव टाइम एंड इंक्रीज इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, बेशक वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे फॉर्म क्रॉस फंक्शनल टीम्स। फाइनेंस के लोग भी होंगे, प्रोडक्शन के लोग भी होंगे, एचआर के लोग भी होंगे, आर&डी के लोग भी होंगे, सेल्स के भी होंगे, मार्केटिंग के भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई बंदा होगा, टॉप मैनेजमेंट का भी कोई बंदा शामिल होगा। अभी आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम है एंड दे आर एक्सपर्ट ऑफ देयर ओन फील्ड and naturally their responsibility is to take care of the aspects of their expertise। जहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज है वो उसी साइड को देखते हैं and they will give their own suggestions and feedback। और जब टीम्स की सूरत में आप काम करेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आपको सपोर्ट होगी, तो चांसेस यही है कि यू आर एबल टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट मोर नाइसली। फिर इस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में हमने ये पढ़ा था सिस्टमैटिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब सिस्टमैटिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मींस इनोवेटिव डेवलपमेंट अप्रोच दैट कलेक्ट्स, रिव्यू, इवैल्यूएट्स एंड मैनेजेस न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। एक तो पहली बात यह है कि आप ना न्यू डेवलपमेंट अप्रोचेस को डेवलप करते हैं कि वो कौन सी हो सकती हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, एवेल्यूएट्स करते हैं और उसकी बेसिस पर फिर आप जो है न्यू प्रोडक्ट आइडियाज को जो है वो मैनेज करते हैं। क्रिएट्स एन इनोवेशन ओरिएंटेड कल्चर। फिर एक और चीज जो कही जाती है वो ये है कि आप अपने टीम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन ओरिएंटेड कल्चर के जहां पर हर बंदा कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहा है, वो कल्चर डेवलप कर रहे हैं कि एवरीबॉडी वांट टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ही कैन ब्रिंग द मोर इनोवेटिव आइडियाज। He is interested to improve the efficiency, features, quality of the product।
जब तक आप ये कल्चर डेवलप नहीं करेंगे, आपकी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं होगी, तो यू विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट नहीं लाएंगे तो वो दिन गए कि जब अब एक ही प्रोडक्ट के साथ ही मार्केट में रह सकते थे। अब तो जब तक आप इनोवेशन नहीं लाएंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे, तो यू कांट क्लेम कि यू विल रिमेन इन द मार्केट। मे बी इफ यू आर नॉट वर्किंग एंड either you have very good standing, but in future maybe you lose or out of the market. So it's very necessary and important that you should create an innovation oriented culture in your organizations. Yields a large number of new product ideas and try to bring more and more new product ideas. यही वजह है कि बहुत सारी organizations जो हैं they always encourage their employees, especially those who bring new ideas. Even sometimes they have a competition, sometimes they have a special prize, sometimes they put boxes at various places where everybody who has a good idea, he just drop it. Sometimes they have a brainstorming session, sometimes they have informal gathering meetings where the ultimate objective is to collect new ideas. And new ideas always come spontaneously. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि अच्छा मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं भी आपको 5 मिनट में नया आइडिया देता हूँ। Yes, it's possible. But sometimes आपको जो न्यू आइडियाज़ जो से होते हैं वो आपको कोई बड़ी अनयूजुअल या आपको कोई ऐसी फीडबैक मिलती है या आपका माइंड जो है वो क्लिक कर जाता है फॉर न्यू आइडियाज़। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि we will also discuss the product life cycle. Product life cycle means, simple definition है कि every product goes through the certain stages and these stages are collectively known as product life cycle. अब ये क्या है कि यहाँ पर जो आपकी नॉर्मल जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या है कि आपकी इंट्रोडक्शन होती है, उसके बाद ग्रोथ है, फिर उसके बाद मैच्योरिटी है, फिर उसके बाद डिक्लाइन है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे आपकी वाई एक्सिस पे जो सेल्स एंड प्रॉफिट है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है और यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहा है कि एक्चुअली ही इज लिंकिंग द न्यू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कंपैरिजन करना चाह रहा है, ये साथ लिंक कर रहा है किसके साथ, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ। अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें ये आपकी लॉसेज एंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये आपका सेल्स एंड प्रॉफिट है, ये लॉसेज है, इन्वेस्टमेंट है, ये आपका टाइम है। अब होता क्या है जब आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट पे काम शुरू करते हैं तो आपके उस पर एक्सपेंडिचर आ रहे होते हैं, इसलिए उसने उसकी कर्व जो सी है वो नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन आप कोई नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आपकी टीम्स काम कर रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, रॉ मटेरियल आ रहा है, अभी तो आपने कोई अर्न तो नहीं कर रहे, अभी तो आपने कोई चीज़ बनाई नहीं है, लेकिन उस पर कॉस्ट तो आ रही है। तो इसीलिए ये जो आपकी जो रेड कर्व जो नीचे जा रही है उसकी रीज़न ये है कि दीज आर ऑल आर द एक्सपेंडिचर। फिर आपने यहाँ पर अगर प्रोडक्ट डेवलप कर लिया तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोडक्ट आपकी जो सी है ये मार्केट में अवेलेबल होना शुरू कर देगी, मार्केट में बिकना शुरू कर देगी और उसके बाद ये बड़ा यानी कि जा रही है और ये आपकी ग्रोथ स्टेज है। फिर ग्रोथ के बाद ये आपकी अपनी मेच्योरिटी पे पहुंच जाती है। मेच्योरिटी मींस कि नाउ इट्स नॉट ब्रिंगिंग मोर एंड मोर कस्टमर और रेवेन्यू, और अगर आप उसको सस्टेन करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते तो कुछ अरसे के बाद वो आपकी फिर जो है सेल्स ड्रॉप होना शुरू कर देती है और प्रोडक्ट जो है आपकी वो डिक्लाइन स्टेज में चली जाती है। अच्छा, अब देखते हैं कि आपकी क्या यहाँ पर यानी कि इन शॉर्ट आपको किस किस्म की स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए एट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस पर। देखिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपकी क्या होती है, सेल्स आर जीरो एंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अमाउंट। जो मैंने भी आपको बताया है कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो तो अभी हो ही नहीं रही। सेल्स क्या होंगी, अभी तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनेगी तो उसको बेचेंगे तो सेल्स होगी। तो इसलिए आपकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस पे आपकी जो सेल्स जीरो होती हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो मैक्सिमम होती है, आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड जो है दैट इज इंट्रोडक्शन।
अब आपने अपनी प्रोडक्ट जो सी है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया मार्केट में, लेकिन ये इट्स इम्पॉसिबल कि वो एकदम मोमेंटम गेन कर लेगी। इट विल नॉट बी एबल टू गेन इमीडिएट रिस्पांस फ्रॉम द मार्केट। फिर उसके बाद स्लो सेल्स ग्रोथ शुरू होती है एंड प्रॉफिट्स आर नॉन एग्जिस्टेंट। अभी आपकी सेल्स स्टार्ट हुई है और जो शुरू में सेल्स होती है उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि आपने इतनी एक्सपेंडिचर कर दी है। प्रॉफिट में तो आप बाद में आएंगे जब आपकी सेल्स एक सर्टेन लेवल पर पहुंचेगी। तो यही आपकी इंट्रोडक्शन पे होता है। अब ग्रोथ में क्या होता है? रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ग्रोथ में अब लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं, आपका जो प्रॉफिट जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मैच्योरिटी पे क्या है? स्लो डाउन इन सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट लेवल ऑफ और डिक्लाइन। मैच्योरिटी पे जाके आपकी जो सेल्स ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और प्रॉफिट लेवल जो है वो आपका ऑफ हो जाता है और इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स डिक्लाइन। और उसके बाद फाइनली आपका जो डिक्लाइन होता है, सेल्स फॉल ऑफ एंड प्रॉफिट्स ड्रॉप। यानी कि बहुत नेचुरली है कि जब डिक्लाइन पे आप चले जाएंगे तो आपका सेल्स भी कम हो जाएगी, आपका जो प्रॉफिट जो है वो भी डिक्लाइन हो जाएगा और अल्टीमेटली यू हैव टू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट एट दिस लाइफ साइकिल स्टेज। या तो आप इस प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन लेकर आएंगे या आप न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे मार्केट में। सो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस कि आपकी अगर एक प्रोडक्ट ग्रोथ पर है, कोई आपका डिक्लाइन पर होगी, कोई आपकी मैच्योरिटी फेज पर होगी, कोई अभी इंट्रोडक्शन स्टेज पे होगी। अब देखिए आपकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज। देखिए वही आपकी कर्व है, सेल्स है और टाइम है। अब वो कहता है अगर स्टाइल है तो स्टाइल में क्या होता है कि जी एकदम आपकी वो ग्रोथ होती है, फिर वो बाज़ के बाद नीचे आता है, फिर उसके बाद वो दोबारा ऊपर जाता है। ये इसकी कुछ नेचुरल बनती हैं कर्व्स। अब होता क्या है कि शुरू में एकदम वो लोग उसको करते हैं, फिर मेजॉरिटी उसको खरीदती है, फिर लोग उसको कम कर देते हैं, फिर आपके बाद में वो जो लैगर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, फिर वो आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इसलिए आपकी जो कर्व जो है स्टाइल की वो इस किस्म की बनेगी। फैशन जो है वो आपको एकदम ऊपर जाता है, उसकी कुछ अर्सा रहता है, उसके बाद यानी कि इसकी जो कर्व है थोड़ी सी इसकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होती है। फैड एकदम यानी कि फैड वो है कि एकदम कोई चीज़ आई है, एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर दैट, और वो क्यों आई है क्या है उसकी कोई रीज़न नहीं होती, और जिस तेज़ी से वो आती है मार्केट में उस तेज़ी से वो गायब हो जाती है। तो अगर आप यानी कि इस किस्म प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि इनका जो ग्राफ भी बन रहा है, देखिए एकदम ऊपर गया, एकदम तेज़ी से नीचे आ गया। ये कोई ऐसा नहीं है कि जी यूं जा रहा है, उसको मेजोरिटी है, फिर क्या नाम है डिक्लाइन है, ऐसी कोई बात नहीं। इसने एकदम शूट किया और उसी तेजी से वापस आ गया। दिस इज फैड। शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्यों होता है? क्यों वो प्रोडक्ट पॉपुलर होती है? कोई उसकी रीज़न नहीं होती और एकदम उसकी पॉपुलैरिटी जो है उसकी ख़त्म हो जाती है। आज लोग खरीद रहे होते हैं, कल को वो जो है वो आउटडेटेड हो जाती है, आउट ऑफ फैशन हो जाती है। ठीक है, तो फैड जो है उसकी लाइफ कम होती है, इसलिए उसका ग्राफ या उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी उसकी इसी किस्म की होगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन स्टेजेस में क्या होती है? आपकी स्लो सेल्स ग्रोथ होती है। अब वो स्ट्रेटजीज बता रहे हैं। लिटिल और नो प्रॉफिट होता है आपका इंट्रोडक्शन स्टेजेस पे। हाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस। देखें, इंट्रोडक्शन में भी आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सेल्स आपकी कम होगी, प्रॉफिट आपका कम होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होंगे क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, साथ आप प्रमोशन करें ताकि कस्टमर इज एबल टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? सेल्स इंक्रीज। नेचुरली जब आपकी कर्व ऊपर जाएगी, सेल्स इंक्रीज। न्यू कंपीटिटर्स एंटर द मार्केट। अब जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में पॉपुलैरिटी गेन कर रही है तो जाहिर बात है आपके कंपीटिटर्स भी तो आपके लिए कोई ओपन स्पेस तो नहीं छोड़ देंगे कि जी ठीक है जी आप करें, आप जो मर्जी करें, मार्केट शेयर लें, प्रॉफिट कमाएं एंड यू मेक मनी। नो, दे विल कम्पीट विद यू। They will also bring the same product. They will not allow you to gain market share. तो यहाँ पर क्या होगा? आपका न्यू कंपीटिटर्स आ जाएंगे, प्राइस स्टेबिलिटी और डिक्लाइन टू इंक्रीज वॉल्यूम। आपकी प्राइस जो है स्टेबल हो जाएगी और
डिक्लाइन टू इंक्रीज वॉल्यूम, और आपका जो वॉल्यूम जो है वो यानी कि डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी जो प्राइस जो सी है या तो वो स्टेबल हो जाएगी या कम हो जाएगी, और आपकी जो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ स्टेज में आपकी प्राइस जो सी है वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, पहले हो सकता है कि आप हायर प्राइस पे बेच रहे हो, लेकिन इसमें आके अब आपका कंपटीशन भी आ गया है, प्रोडक्ट भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई है, तो प्राइस स्टेबल हो जाएगी या आप उसको थोड़ा सा कम करेंगे, और उसके बाद जो है आपका जो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। नाउ पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट एंड इट्स गेनिंग द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंज्यूमर। कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर दे आर एबल टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट। प्रॉफिट्स इंक्रीजेस, नेचुरली जब आपकी सेल्स इंक्रीज होगी आपकी प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, और यही बात यहाँ पे हो रही है। प्रमोशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आपकी प्रमोशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो सी है वो अब आपकी मैच करना शुरू कर देगी कि जितने आपके एक्सपेंडिचर आ रहे हैं उसी हिसाब से अब आपका रेवेन्यू आ रहा है। अब आप उसको क्या करेंगे कि जी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मैन्युफैक्चरिंग और जो आपकी प्रमोशन कॉस्ट है उसको कम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोडक्ट जो सी है, अब उसने मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लिया है, कंज्यूमर नो अबाउट योर प्रोडक्ट, सो अब आप उतने एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए उसने क्या है कि दे विल बी एबल टू गेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैच्योरिटी स्टेज पे क्या, स्लो डाउन इन सेल्स, आपकी सेल्स कम हो जाती है। एक नंबर 2, मैनी सप्लायर्स, अब बहुत सारे लोग वही चीज़ बेच रहे हैं इसलिए आपकी कम हो गई, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बहुत सारे सप्लायर्स आ गए हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो इससे बेहतर हैं, नाउ पीपल आर बाइंग फॉर दोज प्रोडक्ट एंड दे आर नॉट बाइंग दीज ओल्ड प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूट आ गए, जैसे किसी भी चीज़ का होता है, फ्लैट टेलीविजन आए तो पीटीटी वालों की मार्केट कम हो गई, फ्लैट के बाद जब आपके प्लाज्मा आए वो चले गए, प्लाज्मा के बाद आपके एलसीडी आए, एलसीडी के बाद एलईडी आया, जब नई कोई इम्प्रूव वर्जन आया तो दूसरी जो है उसकी वैल्यू कम हो गई। ओवर कैपेसिटी लीड्स टू कंपटीशन, अब जाहिर बात है कि जब ज़्यादा सप्लायर्स हैं, ज़्यादा माल आ रहा है तो आपका कंपटीशन भी जो है इंक्रीज होगा। इंक्रीज प्रमोशन एंड R&D टू सपोर्ट सेल्स एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पर यह है कि बाज़ का आप अपनी प्रमोशंस को भी इंक्रीज करते हैं, बाज़ का आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी जो है वो करते हैं कि आपने अपनी सेल्स और प्रॉफिट जो है उसको अपने मेंटेन करना होता है या इंक्रीज करना होता है। मैच्योरिटी स्टेज मॉडिफाइंग स्ट्रेटजीज, अब मैच्योरिटी पे जाके देखें, अब आपको कुछ ना कुछ मॉडिफाइंग स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़ेगी। मार्केट मॉडिफाइंग, आप मार्केट जो है उसको चेंज कर लेंगे, आप किसी और मार्केट में चले जाएंगे। प्रोडक्ट मॉडिफाई, आप अपने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस लाएंगे। देखिए अब आपकी प्रोडक्ट जो है मैच्योरिटी पे है, आपने डिक्लाइन को अवॉइड करना है, और वो उसी सूरत में कर सकते हैं, या तो आप मार्केट जो है उसको चेंज करें या प्रोडक्ट में कोई चेंजेस लेकर आएँ, या इसके अलावा मार्केटिंग मिक्स मॉडिफाइंग के आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन और प्लेस की जो स्ट्रेटजीज हैं 4 P's जो से मार्केटिंग मिक्स, उनको आपको मॉडिफाई करने पड़ेगा, उनको आपको मोर मार्केट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिसकी बदौलत जो है आपकी जो मैच्योरिटी स्टेज है या तो उसको सस्टेन किया जाए या डिक्लाइनिंग को अवॉइड किया जा सके। उसके बाद फाइनली आपका आ गया जी डिक्लाइनिंग स्टेज। अब डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या है, मेंटेन दी प्रोडक्ट, यानी आप कोशिश करें अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करें ताकि वो मजीद डिक्लाइन की तरफ ना जाए। 1 सेकेंड, हार्वेस्ट द प्रोडक्ट, कि अब आपने हार्वेस्ट द प्रोडक्ट की हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि अब आपने अपने प्रोडक्ट से जो है मैक्सिमम जो एडवांटेज लेना था या जो अपने प्रॉफिट लेना था आप उसको ले चुके हैं। अब उसको आप हार्वेस्ट करें मींस कि उसकी जगह कोई नई प्रोडक्ट लेकर आए। देखिए अभी आप देखें मोबिलिंक का एक ब्रांड है जैज, प्रीपेड ब्रांड जो है जैज है। अब जैज जब कोई होता है तो वो क्या करते हैं, एक नया लेंगे जैज ऑक्टेन, जैज बजट, जैज प्लान, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि उसको कोशिश करते हैं कि उसको डिक्लाइन से जाने से अवॉइड करें
और उसका जो है मेच्योरिटी जो सी स्टेज जो सी है या क्या नाम है उसको एक नई लाइफ साइकिल उसका डेवलप कर दिया जाए। ड्रॉप द प्रोडक्ट, फिर ये कि अगर आप हार्वेस्ट स्टेज पे देखते हैं कि जी अब इससे कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, उसकी प्रोडक्शन जो है उसको स्टॉप कर देते हैं और आप उसको मजीद ओन नहीं करते। अच्छा, प्रोडक्ट डिसीजंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन यानी कि हम हमेशा बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यहाँ पे भी क्या है कि पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग डेवलपिंग एंड ड्रॉपिंग प्रोडक्ट्स, पैटर्न्स, क्वालिटी एंड सेफ्टी। अब जब भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप कर रहे हो, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट की एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट की ड्रॉपिंग की बात करें, there are certain rules and regulations exist in the form of यानी कि regulatory authorities और लॉ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशंस जो भी एग्जिस्ट करते हैं आपकी कंट्री में, आप उनको ज़रूर फॉलो करें। आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलप करनी है, नहीं हो सकता कि यू हैव टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरियाज। बाज़ औक़ात आपको अप्रूवल चाहिए होती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की। मेडिसिन है ना, आप एक नई मेडिसिन डेवलप की, नया फार्मूला डेवलप की, ये नहीं कि आप उसको डेवलप कर दिया तो आप उसको मार्केट में लेकर आ जाए। आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको उसके सर्टन यानी कि एश्योरेंसेस देनी पड़ेगी। इस तरह बाज़ का अगर एक प्रोडक्ट है आप उसको इमीडिएट मार्केट से ख़त्म नहीं कर सकते, उसके भी एक तरीकाकार है कि हाउ यू विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट। इन शॉर्ट जो यहाँ पर वो मैसेज है वो यही है कि प्रोडक्ट डिसीजंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने जितनी भी प्रोडक्ट डिसीजंस रिलेटेड आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो करें। उस पर डोंट डू एनीथिंग दैट इज इलीगल, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर वर्किंग फॉर ए ब्रांड। If you do anything that is illegal or that is not according to the local laws or that is not according to the rules, regulations specify certain regulatory authorities, so what will happen? It will bring a bad name for your organization as well as it will create problems for your brand. So being good marketers, you have to take care of the public policies, rules, regulations and the country's law. So you also follow all these same while you are developing a new product development. Similarly, international product and service marketing challenges जब आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं या सर्विसेज मार्केटिंग, उसमें क्या है? डिटरमिनिंग व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इंट्रोड्यूस इन विच कंट्रीज। पहला वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कौन सी मार्केट में काम करना चाहते हैं, कौन से कंट्रीज में आप काम करना चाह रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस कस्टमाइजेशन, आप यू वांट टू ब्रिंग अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इनटू ऑल द रीजन्स और यू वांट टू ब्रिंग अ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टारगेट मार्केट। ठीक है ना, इंटरनेशनल मार्केट है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज, कल्चर, इकोनॉमीज। तो क्या आपकी प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए एंड ही हैज़ द एबिलिटी टू बी मार्केटेड इन एनीवेयर, और यू हैव टू मेक सर्टेन मॉडिफिकेशन। जिस तरह कुछ कंपनीज हैं वो सेम प्रोडक्ट के साथ इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं, कुछ जो सी हैं उसको कस्टमाइज करती हैं, लोकल एनवायरनमेंट के साथ उसको मैच करती हैं। तो दिस इज टू बिग डिसीजन फ्रॉम इंटरनेशनल प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग challenges point of view. Packaging and labeling, again there are certain rules and regulations are there, आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बाद लोगों की पैकेजिंग होता है कि इसकी ऐसी होनी चाहिए, लेबल्स में जो है आपको ये चीज़ जो है हाईलाइट करनी है। जैसे फूड के अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, केमिकल्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिसिन की अपनी है, ईटेबल आइटम्स की अपनी है। कि आप क्लियरली मेंशन करें कि जैसे लेट्स से कि जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, इसके अंदर आपने जो एडिटिव्स डाले हुए हैं वो कौन कौन से एडिटिव्स हैं, इसके जो साइड इफेक्ट है या केमिकल फार्मूला है या प्रिस्क्रिप्शन जो सी है, आपको उसको इसके अंदर आपने प्लेस करनी है फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंज्यूमर। कस्टम्स, वैल्यूज, लॉस, अगेन ऑल दिस वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो आपने ये भी देखना है कि वहाँ के कस्टम्स क्या हैं,
वैल्यूज क्या है और लॉज क्या कहते हैं। ये देखें यहाँ पर जैसे इसने इस एड में नेस्ले किटकैट का एड दिया हुआ है और दे आर इंट्रोड्यूसिंग इट इन जापान एंड दे आर इनकॉर्पोरेटिंग द किटकैट विद द Japanese culture, values and customs. So international market is not an easy task, but if you are planning to enter into international market, please take care of their customs, values and laws. Otherwise maybe you will not be able to do a successful business without realizing, without considering, without giving due importance to these factors. इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगेन रेफरेंसेस जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई टू प्रिपेयर टुडेज लेक्चर, और उसके बाद आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी बात करनी है, लेकिन आज छोटी सी बात जो सी है वो थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है। लेकिन ये बड़ी इसलिए नहीं है कि इसमें कोई बात पड़ी है, बल्कि इसमें कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं। आइए देखते हैं कि आज की छोटी सी बात में हम क्या बड़ी बात कर रहे हैं। डू नॉट से यू डोंट हैव इनफ टाइम, यू हैव द सेम नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज हेलन केलर, माइकल एंग्लो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो डा विंसी, थॉमस जेफरसन एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। हम अक्सर एक बात करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम जब भी किसी को कहते हैं कि आप ये काम करो, ये मेहनत करो, वो कहते हैं कि सॉरी आई डोंट हैव टाइम टू डू दैट। बाज़ वक़्त हम ये भी कहते हैं आई डोंट हैव टाइम टू स्टडी। तो प्लीज़ जब आप ये बात कहते हैं तो सोचें, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ थी जिसका हमने कुछ लोगों का नाम दिया, हेलन केलर, इसने इतना सोशल वर्क किया। माइकल एंग्लो, उसकी अपनी स्टैंडिंग है आर्ट की फील्ड में। मदर टेरेसा, अगेन सोशल वर्क उसने किया। लियोनार्डो डा विंसी, इसके भी बड़े यानी कि आउटस्टैंडिंग इसके आर्टिस्टिक काम है। फिर थॉमस जेफरसन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी बड़े लोग हैं, इनके पास भी तो इतना ही टाइम होता था जितना हमारे पास है। इनके पास भी वही रिसोर्सेज थे, लेकिन ये इतने बड़े लोग बन गए और आज इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यों हम क्या नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं अगर हम अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तो आप भी अपने टाइम को बेहतर तौर पे इस्तेमाल करें। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मेक माय टाइम मोर वैल्यूएबल। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।